Welcome everybody to this new lecture of our book Electrodynamics, and today we will continue our discussion over relativistic electrodynamics. And before we going into relativistic electrodynamics, let us familiar with special theory of relativity or some concept of special theory of relativity from which we can easily introduce the relativistic electrodynamics concepts. So हम बात कर रहे थे फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के बारे में। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की अगर बात की जाए तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको बताए गए थे दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं। पहला जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, these are of two types. First is the inertial frame of reference in which Newton's first law of motion is valid. These frame of references are known as inertial frame of reference, and other one in which the Newton's first law of motion is not valid, known as non-inertial frame of reference. तो इन्हीं फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम यूज करेंगे और हमारा जो अगला डिस्कशन जितना भी चलेगा ओवर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और धीरे धीरे हम यहाँ से शिफ्ट होंगे रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के ऊपर। तो हमारा जो जितना वर्क हम करेंगे इनर्शियल फ्रेम में हम करेंगे, और नॉन इनर्शियल फ्रेम्स को हम यहाँ यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ स्यूडो फोर्स का जो कंसेप्ट हमें यूज करना पड़ता है उससे हम यहाँ अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, और जितने भी कंसेप्ट्स और जितने भी टॉपिक हम करेंगे वो सब इनर्शियल फ्रेम को कंसिडर करते हुए करेंगे। ओके, सो हम इस तरह के दो फ्रेम्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इस तरह के ये दो फ्रेम हैं। ये फर्स्ट इनर्शियल फ्रेम है एस, एंड दिस इज द सेकंड इनर्शियल फ्रेम एस प्राइम. The S prime is the second inertial frame, and in these inertial frame there are some point P in the frame of reference S, and remember these are two inertial frames in which the frame S prime is moving with constant velocity V, constant velocity, because the frame S is moving with constant velocity with respect to S. These are two inertial frames in which frame S is here and frame S prime is here, and the condition is that frame S, these are two inertial frames, and the frame S prime is moving with velocity V with respect to S. So because these are inertial frames, and you know that in inertial frame Newton's first law of motion is valid, that's why acceleration of some point particle is zero in these frames, being these two frames, and also the force applied on any point particle is also be zero in S frame and as well as in S prime frame, because this is also inertial frame. Okay, so why the acceleration of a point particle as weaved from the frame S prime is also be zero, and force applied on the point particle is also be zero. This is the X axis of S frame, Y axis, and this is the X prime axis, and this is the Y prime axis of S prime frame. The noted thing here is that S and S prime are the two inertial frames in which Newton's first law of motion is valid, and the second point is the frame S, the inertial frame S prime, is moving with constant velocity V with respect to S. So let us define some mathematical concept that if S prime moves with uniform velocity with respect to S, then S prime is also an inertial frame. जितने भी inertial frame किसी दूसरे inertial frame के respect में constant velocity से move करेंगे, वो सारे के सारे frames क्या होंगे? inertial frames होंगे। ये frame inertial है, और चूंकि S प्राइम फ्रेम इस फ्रेम की अपेक्षा इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसलिए जो S प्राइम फ्रेम है वो भी कौन सा होगा? एक इनर्शियल फ्रेम ही होगा।
Okay, for simplicity, let us consider that for the sake of mathematics, that x and x prime axes are on the same line. ये हमने मान लिया है या कंसिडर कर लिया है. ये केवल मैथमेटिकल कंसेप्ट्स हैं और ऐसा नहीं है कि आप ऐसा ही कंसिडर करें तो ही आप जो आपका रेस्पेक्टिव टॉपिक है वहां तक पहुंच पाएंगे. आप और भी कंसिडरेशन कर सकते हैं, पर फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी दैट x एंड x प्राइम एक्सिस आर ऑन द सेम लाइन. आप यहाँ देख भी सकते हो x एक्सिस भी इसी लाइन पे है और x प्राइम एक्सिस भी इसी लाइन पे है. y and y prime are parallel and also z and z prime are also parallel. Okay, let us consider some event. ये इस वर्ड की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं. इवेंट क्या होता है, पहले मैं इवेंट को डिफाइन करता हूँ और फिर इस इवेंट के ऊपर आते हैं. इवेंट क्या हुआ? घटना का मतलब ये हुआ कि जब आपको कहीं x y z इन तीनों कोऑर्डिनेट्स का पता हो तो ये आपको आंसर देते हैं वेयर, कहाँ, ये घटना कहाँ हुई है, ये इवेंट कहाँ हुआ है. ओके, और ये आपको लोकेशन एक्चुअली बताता है. और जो समय है, टाइम है, ये आपको आंसर देता है कब. यानी आपको जब इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर पता हो, कहाँ और कब, तो आप कहते हैं कि वहाँ एक इवेंट हुआ है, वहाँ एक इवेंट हुआ है, उस समय वहाँ पर, उस समय वहाँ पर. ओके, वहाँ पर उस समय. ओके, तो इवेंट का मतलब हुआ घटना से. इवेंट का मतलब हुआ घटना से. और घटना को आप कैसे डिफाइन करेंगे? जब आपको इन दो क्वेश्चंस का पता हो, कहां और कब. कहां का आंसर देगा आपको x, y एंड z कोऑर्डिनेट, यानी उसकी लोकेशन का आपको पता हो. और कब का आंसर देगा आपको टाइम, जब आपको समय का पता हो. यही काम आप एस फ्रेम में करते हैं, तो सिमिलर वर्क आप कहां करेंगे? एस प्राइम फ्रेम में. जब आपको कोऑर्डिनेट का उसी घटना एक ही है, लेकिन आप एक बार उसे एस फ्रेम से देख रहे हैं और दूसरी बार उसको एस प्राइम फ्रेम से देख रहे हैं. तो जब आप उसे एस फ्रेम से देखेंगे तो वो आपको घटना जो इवेंट है, कब हुआ, कहां हुआ, एस फ्रेम से देखेंगे तो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट आपको बताएंगे कहां हुआ, और समय टी आपको बताएगा कब हुआ. और उसी इवेंट को जब आप एस प्राइम फ्रेम से देखेंगे, बिकॉज ये दोनों इनर्शियल फ्रेम हैं, तो एस प्राइम फ्रेम से उसी इवेंट को अगर आप देखेंगे तो कहां हुआ, तो ये बताएगा आपको एक्स प्राइम, वाई प्राइम एंड जेड प्राइम कोऑर्डिनेट. और कब हुआ तो ये आपको बताएगा टी प्राइम, यानी कि जो समय एस प्राइम फ्रेम में है. तो एक इवेंट कंसीडर कर रहे हैं. इवेंट कुछ इस तरह का है कि जो O प्राइम है, O प्राइम कोऑर्डिनेट है, O प्राइम एक्स प्राइम, ये जो S फ्रेम है इसका ओरिजिन है, और O ये जो S फ्रेम है इसका ओरिजिन है. यानी O इज द ओरिजिन ऑफ फ्रेम S एंड O प्राइम इज द ओरिजिन ऑफ S प्राइम फ्रेम. ओके, तो इवेंट कुछ इस तरह का कि O प्राइम क्रॉसिंग O, यानी जब ये फ्रेम बिल्कुल एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रहे थे, यानी O प्राइम O को क्रॉस कर रहा था, O प्राइम O को क्रॉस कर रहा था, तो जो समय रहा होगा टी एस फ्रेम में, वो समय t इक्वल्स टू 0 रहा होगा. और अगर उसी समय को, उसी इवेंट को हम एस प्राइम फ्रेम से देखेंगे तो वो समय कितना मिलेगा हमें? टी प्राइम मिलेगा, और वो भी कितना रहा होगा? 0. कुछ इस तरह का वो इवेंट रहा होगा कि O कोइंसाइड्स विद O प्राइम, मीन्स एक्स प्राइम एक एक्सिस पे होंगे, वाई प्राइम एक्सिस भी एक दूसरे के पैरेलल होंगे, और जेड प्राइम एक्सिस भी एक दूसरे के पैरेलल होंगे. पैरेलल कहना भी जरूरी नहीं है, एक ही लाइन पर होंगे. अगर कोइंसाइड करेंगे तो एक ही लाइन पर होंगे. ओके, तो इस इवेंट को हम कंसिडर करते हैं कि जब O प्राइम क्रॉसिंग O को क्रॉस कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी. इस बात को आपको ध्यान रखना है कि ये जो इनर्शियल फ्रेम S है इसको आप स्थिर मान सकते हैं, और जो S प्राइम फ्रेम है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी मूवी से मूव कर रहा है. हैं दोनों इनर्शियल फ्रेम, बिकॉज
जितने भी इनर्शियल फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं विद रेस्पेक्ट टू अनदर फ्रेम जो पहले से ही इनर्शियल है, तो मूव करने वाला फ्रेम भी इनर्शियल फ्रेम ही होता है। हमने बात की थी दो फ्रेम्स की, एक इनर्शियल फ्रेम, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम है जो जिसमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वैलिड रहता है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम है जहां न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वैलिड नहीं रहता है। ओके, तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हम यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं, और इस फिनोमिना को आप ध्यान से समझेंगे कि ये हम मेरे पास फ्रेम है एस फ्रेम, और ये मेरे पास फ्रेम है एस प्राइम फ्रेम, और एस प्राइम फ्रेम की कंडीशन वही है कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी वी से मूव कर रहा है। देखिए यहाँ हम जितनी भी बातें करेंगे लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन तक हम जाएंगे, जहाँ तक भी हम यहाँ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करते रहेंगे, तो ये कंडीशन यहाँ बनी रहेगी हमेशा कि हम मेरे पास दो फ्रेम रहेंगे हमेशा, एस फ्रेम और एस प्राइम फ्रेम, और ये कंडीशन हमेशा, तीन मैथमेटिकल कंडीशंस मैंने यहाँ आपको जिक्र किया है कि एक्स एंड एक्स प्राइम्स एक्सिस आर ऑन द सेम लाइन, वाई एंड वाई प्राइम एक्सिस आर पैरेलल, जेड एंड जेड प्राइम एक्सिस आर ऑल्सो पैरेलल, एंड एस प्राइम फ्रेम मूविंग with velocity v with respect to s frame, with respect to s frame। ये कंडीशन हमें यहाँ हमेशा यहाँ बनी रहेगी। तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस को हम इस इवेंट से हम कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ देखिएगा आप, ये मेरे पास s फ्रेम है। ओके, ये s फ्रेम का ओरिजिन है O, और ये एक दूसरा फ्रेम है एस प्राइम फ्रेम जो कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। अगर ये फ्रेम इसके रेस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये दोनों फ्रेम कैसे हुए? इनर्शियल फ्रेम हुए, इनर्शियल फ्रेम हुए। ओके, अब यहाँ कोई इवेंट है, कोई भी इवेंट है। ओके, इस इवेंट को जब मैं एस फ्रेम से देखता हूँ तो इसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स वाई जेड, जो मुझे बता रही है इवेंट कहाँ हो रहा है, और समय है टी जो मुझे बता रहा है ये इवेंट कब हो रहा है। और जब इसी इवेंट को, सेम इवेंट को मैं एक दूसरे फ्रेम एस प्राइम फ्रेम से देखता हूं जो एस प्राइम फ्रेम की रेस्पेक्ट में वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये इवेंट मुझे कहाँ दिखता है? एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम कोऑर्डिनेट पे दिखता है, और कब दिखता है? टी प्राइम समय पर ये मुझे दिखता है। ओके, तो जो मैथमेटिकल कंसेप्ट मैंने यूज किए हैं यहाँ, इस तरह की जो कंडीशंस मैंने अप्लाई की है, इनके आधार पर हम यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस को यूज करने वाले हैं। अब एक ये इवेंट की हम बात कर रहे हैं, तो ये इवेंट अगर मैं एस फ्रेम से देख रहा हूं तो कहाँ हुआ है? तो कहाँ हुआ है? एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट पे हुआ है, और कब हुआ है? तो समय टी हुआ है। तो ये जो इस इवेंट की ओरिजिन ओ से जो डिस्टेंस होगी वो एक्स होनी चाहिए, क्योंकि ये एक्स कोऑर्डिनेट है इसका, और जो इसका वाई कोऑर्डिनेट है वो वाई होना चाहिए, और जेड चूंकि हम यहाँ कंसीडर नहीं कर रहे हैं, या आप कहें कि वो इनटू द प्लेन या आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर है, तो वो जो डिस्टेंस है वो भी सेम ही रहेगी, जेड एक्सिस से जेड रहेगी। तो और इसी इवेंट को जब आप एक्स प्राइम फ्रेम से देख रहे हैं तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाते हैं, उसी इवेंट के कोऑर्डिनेट हो जाते हैं एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम, और किस समय? ये मुझे आंसर दे रहे हैं कि ये इवेंट कब हो रहा है और कहाँ हो रहा है, तो ये मुझे देता है टी प्राइम, ये आंसर मुझे देता है टी प्राइम। ओके, अब इस इवेंट को जब मैं एस प्राइम फ्रेम से देखता हूं तो ओ प्राइम फ्रेम से इस इवेंट का जो एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस होना चाहिए वो एक्स प्राइम होना चाहिए, एक्स प्राइम होना चाहिए। और एक दूसरी बात ये है यहाँ ध्यान देने की, मैं फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये इवेंट मान लीजिए यहाँ हुआ है जिसका एस फ्रेम से जो कोऑर्डिनेट हैं वो एक्स वाई जेड है और समय टी है, और ओ प्राइम फ्रेम से या एस प्राइम फ्रेम से मैं जब इसी इवेंट को देखता हूं तो इसके कोऑर्डिनेट एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम और समय टी प्राइम है। तो ये
इवेंट जो यहाँ हुआ है इसका फ्रेम S के ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस होगा वो x होना चाहिए, और O प्राइम फ्रेम से एक्स एक्सिस का जो डिस्टेंस है वो x प्राइम होना चाहिए। दूसरी बात हमें यहाँ नोट करनी है वो ये है कि चूंकि ये वाला फ्रेम v कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन दिस पर्टिकुलर केस, सो ये इस घटना के बाद जब ये एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे थे उससे इस फ्रेम के द्वारा, इस S प्राइम फ्रेम के द्वारा जो चली गई दूरी होगी वो कितनी होनी चाहिए? vt होनी चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक समय वो था जब समय t इक्वल टू 0 था S फ्रेम में और t प्राइम इक्वल टू 0 था S प्राइम फ्रेम में। ये समय कब था? जब दोनों के ओरिजिन एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे थे। अब ये है इवेंट यहाँ इस तरह का है कि ये जो फ्रेम है S फ्रेम, इसके कोऑर्डिनेट ये हैं x प्राइम, y प्राइम, z प्राइम और समय t प्राइम है, और इसी इवेंट को जब मैं S फ्रेम से देखता हूं तो इसके कोऑर्डिनेट x, y, z और t समय t है। तो इस समय t में S प्राइम फ्रेम द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी? क्योंकि दूरी का सूत्र हम जानते हैं, दूरी यानी डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल्स टू होगा वेलोसिटी इनटू टाइम या स्पीड इनटू टाइम। सो वेलोसिटी चूंकि इसकी v है जो कांस्टेंट है और समय जो इसने यहां से यहां तक जाने में लिया है वो t है, तो ये जो डिस्टेंस हो गई, ये जो डिस्टेंस हो गई, ये हो गई vt। ये डिस्टेंस कितनी हो गई? vt डिस्टेंस हो गई। ओके, सो अगर मैं अब x को लिखना चाहूं, इस x को लिखना चाहूं, ये जो S फ्रेम के ओरिजिन से उस इवेंट का डिस्टेंस है x एक्सिस पे, अगर मैं x को लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? x प्राइम प्लस vt, चूंकि vt भी एक डिस्टेंस है, दैट इज x इक्वल्स टू कितना होगा? x prime, this distance, that is the distance of this event on x axis as viewed from frame S prime। ओके, और ये डिस्टेंस vt है, तो x का जो वैल्यू हुआ वो कितना हुआ? x प्राइम प्लस vt। अब y एक्सिस पे डिस्टेंस देख लेते हैं। देखिए यहां से o प्राइम से o जो o S फ्रेम का ओरिजिन है o, उससे जो इस इवेंट का डिस्टेंस है वर्टिकल, ये डिस्टेंस है, ये कितना है? यहाँ भी y और यहाँ भी इस फ्रेम में भी y, यानी y एक्सिस में कोई चेंज नहीं है। z से भी डिस्टेंस काउंट करेंगे तब भी ये z ही रहेगा, और समय इनका t इक्वल्स टू t प्राइम रहेगा। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं ये कुछ इस तरह की मेरे पास आती हैं, दैट x इज इक्वल्स टू vt प्लस x प्राइम। तो x प्राइम का यहाँ से वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो x माइनस vt, y प्राइम होगा y के बराबर, z प्राइम होगा z के बराबर और t प्राइम होगा t के बराबर, t प्राइम होगा t के बराबर, एज वी वर लिव इन द लो वेलोसिटी वर्ल्ड। लो वेलोसिटी वर्ल्ड का मतलब ये है कि अगर हम लाइट की वेलोसिटी सबसे ज्यादा कंसीडर करते हैं, जो है भी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लेकिन जिन वेलोसिटीज को हम यूज करते हैं, पेड़ से पत्ता गिरता है, या फिर हम किसी बस में ट्रेवल करते हैं, किसी अपनी बाइक से ट्रेवल करते हैं, या साइकिल से कहीं जाते हैं, या फिर हम ट्रेन से सफ़र करते हैं, और मैक्सिमम जो स्पीड है हमारी वो जब हम एयरप्लेन यानी हवाई जहाज से यात्रा करते हैं तो वो मैक्सिमम स्पीड हमारी हो जाती है। तो अगर हम इन स्पीड्स की बात करें, इन वेलोसिटीज़ की बात करें, तो मैक्सिमम जब हम साइकिल से ट्रैवल करते हैं तो 10 to 20 किलोमीटर पर आवर, जब हम बाइक से ट्रैवल करते हैं 40 to 60 किलोमीटर पर आवर बोल रहा हूँ मैं, और जब हम कार से ट्रैवल करते हैं तो 60 to 80 किलोमीटर पर आवर, और जब हम ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो 80 to 100
किलोमीटर पर आवर, और जब हम किसी हवाई जहाज से यात्रा करते हैं तो 500, 400, 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम ट्रेवल कर पाते हैं। जबकि हम अगर लाइट की वेलोसिटी से कंपेयर करें इन सब वेलोसिटीज का, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अप्रोक्सीमेटली 3 लाख किलोमीटर पर आवर, सॉरी पर सेकेंड। सो इतनी बड़ी वेलोसिटी से अगर आप कंपेयर करें इन वेलोसिटीज को, तो अप्रोक्सीमेटली नेग्लिजिबल है, अप्रोक्सीमेटली नेग्लिजिबल है। इसलिए मैंने ये लाइन यहां लिखी है, एज वी लिव इन लो वेलोसिटी वर्ल्ड। लो वेलोसिटी वर्ल्ड में हम रहते, पेड़ से पत्ता गिरता है किस स्पीड से, किस वेलोसिटी से, इसलिए। सो एंड ऑल्सो वी कैन हैव, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं, ये एक्स प्राइम की वैल्यू देती है x माइनस वी टी के फॉर्म में, y प्राइम की वैल्यू देती है y के इक्वल, जैसा हम उस अभी कंसीडर करके भी आए हैं। z प्राइम की वैल्यू है z के बराबर, और समय जो t प्राइम है वो है t के इक्वल। आल्सो वी कैन राइट x की वैल्यू, हम इन कोऑर्डिनेट्स को x के वैल्यूज के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दैट x इक्वल्स टू x प्राइम प्लस वी टी, दिस y equals to y prime and z equals to z prime and t equals to t prime. So these equations are known as Galilean transformation equations. गैलीलियन ने इनको दिया था और उन्हीं के नाम पे Galilean transformation equations रखी गई हैं. So these equations which relates the coordinate of S frame to the coordinates of S prime frame, these equations are relates these two coordinates, and the relation between the frame S and S prime is that these are two inertial frames, and frame S prime moves with a constant velocity v with respect to frame S. This is the relation between these two frames. These are all two are inertial frames. All frames moving with constant velocity with respect to other inertial frame are also inertial frames. Okay. अब इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं that invariance of Newton's law of motion under Galilean transformation. Newton's law of motion किस तरह इनवेरिएंट रहते हैं अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, फिर से हमारे पास ये दो फ्रेम्स हैं, ठीक है. ये एस फ्रेम है, ये एस प्राइम फ्रेम है. एस प्राइम फ्रेम एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है. ये एस फ्रेम का एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस इनटू द पेज, आउट ऑफ द पेज यहाँ कहीं हो सकता है. और ये एक्स प्राइम एक्सिस है एस फ्रेम का, वाई प्राइम एक्सिस है. ये ओ ओरिजिन है एस फ्रेम का, और ओ प्राइम ओरिजिन है एस प्राइम फ्रेम का. और कंडीशन वही है कि जो मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स हम लेके चल रहे थे कि जो एस प्राइम फ्रेम है वो एस फ्रेम की तुलना में v कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर जा रहा है. ओके, तो कंडीशन कुछ इस तरह की है कि फ्रॉम फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस इवेंट p इज डिस्क्राइब्ड बाय x, y, z एंड t. ये कोई इवेंट है यहाँ जो हो रहा है. जब इस इवेंट को हम एस फ्रेम से देखते हैं तो ये हो रहा है एक्स, वाई, जेड कोऑर्डिनेट पे, और समय है t. इसी इवेंट को जब हम एस प्राइम फ्रेम से देखेंगे तो ये इवेंट होगा एक्स प्राइम, वाई प्राइम और जेड प्राइम एक्सिस पे, और समय रहेगा, कुछ समय रहेगा उस समय, उस फ्रेम में कुछ समय होगा, वो होगा समय t प्राइम. ओके, अब होता ये है कि the relation between these coordinates means this and this coordinates is given by Galilean transformation equations. These are the relation between the coordinate of S prime frame to the coordinates of S frame is this: x prime is equals to x minus vt, y prime is equals to y, z prime is equals to z, and t prime is equals to t. These are known as Galilean
transformation. As described by the figure from frame S, the velocity of the particle is. ये कोई पार्टिकल है, यहाँ आप देख सकते हैं, ये पार्टिकल है जो समय t पर इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x, y, z हैं, और कुछ समय बाद dt समय बाद इसके जो कोऑर्डिनेट्स बदल जाते हैं, इनके कोऑर्डिनेट में जो चेंज आता है वो कुछ इस तरह का आता है, दैट x प्लस dx हो जाता है x वाला कोऑर्डिनेट, y प्लस dy हो जाता है y वाला कोऑर्डिनेट, और z प्लस dz हो जाता है z वाला कोऑर्डिनेट, और जो समय है वो बदलकर t प्लस dt हो जाता है। या दूसरी बात, आप इसी बात को आप दूसरे शब्दों में कहना चाहे तो आप कह सकते हैं कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट dt समय में बदलकर x प्लस dx, y प्लस dy एंड z प्लस dz हो जाते हैं। ओके, सो एज डिस्क्राइब्ड बाय द फिगर, और ये जो फिनोमिना, ये जो घटना, ये जो इवेंट हम देख रहे हैं, ये फ्रेम S से अभी हम देख रहे हैं। सो एज डिस्क्राइब्ड बाय द फिगर फ्रॉम द फ्रेम S, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज Vx, आपको पता है टाइम रेट चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट x, जो Vx कंपोनेंट है वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या हो जाएगा, टाइम रेट चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट, और वेलोसिटी का जो z कंपोनेंट है वो हो जाएगा टाइम रेट चेंज ऑफ z कंपोनेंट। और ये कहाँ से हम देख रहे हैं, S फ्रेम से देख रहे हैं। यही घटना जब हम S प्राइम फ्रेम से देखेंगे तो ये जो Vx प्राइम आएगा, यानी वेलोसिटी का जो प्राइम कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा dx प्राइम बाई dt प्राइम, Vy प्राइम आएगा dy प्राइम बाई dt प्राइम, और Vz प्राइम आएगा dz प्राइम ओवर dt प्राइम। जब इसी फिनोमिना को हम कहाँ से देखेंगे, S प्राइम फ्रेम से। S प्राइम फ्रेम कौन सा फ्रेम है, जो वेलोसिटी V से, कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम S। ओके, अब देखिए, जो अगर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस को हम यूज करें तो x प्राइम फ्रेम का वैल्यू है हमारे पास x माइनस vt। तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ रखते हैं x प्राइम फ्रेम की, x प्राइम कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू है यहाँ पुट करते हैं तो ये आ जाती है d बाई dt, दैट इज टाइम रेट चेंज ऑफ x प्राइम, एंड x प्राइम इज इक्वल्स टू x माइनस vt। तो पुट हियर x minus vt. So on differentiating with respect to t, we have dx by dt, because time rate change of x, minus v into t, because v is constant, so dt over dt. So dx over dt gives me vx, because here you can see it that dx equal to dt equal to Vx. So dx by dt, in place of dx by dt we can put Vx, and minus v is as it is, dt is cancelled with dt, or you can say that time rate change of time is equals to 1. That's why Vx equals to Vx minus v. This is the velocity of this particle as viewed from S frame, or you can say it that coordinate of velocity, the x coordinate of velocity in x prime frame is equals to Vx minus v. And when you calculate Vy prime, that is the coordinate of velocity in S prime frame, the y coordinate of velocity in y in S frame is equals to dy prime over dt prime, as you put here dx prime over dt prime, because y prime is equals to y, so put here dy over dt, and dy over dt is equals to y, so y prime is equals to y, and similarly vz prime is equals to vz. That is, the result from here is that the change in the x component of velocity in S prime frame is equals to Vx, that is the velocity of that particle into the S frame, minus v, that is the velocity of S prime frame with respect to S frame. Okay, and Vy prime, that is the y coordinate of velocity as viewed from S prime frame, is equals to the y coordinate of velocity as viewed from
एस फ्रेम। इस वेलोसिटी के इस कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं आता, जेड कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन चेंज कहाँ आता है? केवल एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द वेलोसिटी, यानी एक्स कोऑर्डिनेट वेलोसिटी का चेंज हो जाता है। या फिर मैं इसी बात को क्या कह सकता हूं? इसी बात को मैं ये कह सकता हूं कि अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज डिफरेंट इन डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। या फिर मैं ये कह सकता हूं कि एक फ्रेम में वेलोसिटी अगर आप vx पर कंसीडर कर रहे हैं, तो दूसरा जो इनर्शियल फ्रेम है, जो पहले फ्रेम की अपेक्षा v वेलोसिटी से कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उस फ्रेम में वेलोसिटी का x कोऑर्डिनेट डिफरेंट होता है। यानी हम कह सकते हैं कि ऐसे दो फ्रेम जिनमें से एक फ्रेम दूसरे फ्रेम की अपेक्षा v वेलोसिटी से कांस्टेंट v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उन दोनों फ्रेम में वेलोसिटी के कोऑर्डिनेट में चेंज दिखाई देता है। यानी एक फ्रेम में वेलोसिटी कुछ और होगी और दूसरे फ्रेम में वेलोसिटी कुछ और होगी। यानी इनर्शियल फ्रेम्स में वेलोसिटी डिफरेंट हो सकती है। ये हमें सिखाया गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ने। The above equation are known as velocity transformation equation. These equation establishes a relation between the velocity coordinate of S frame and S prime frame. ओके, ये रिलेशन हमें इस्टेब्लिश करके देते हैं, क्योंकि ये जो वेलोसिटी है एस प्राइम फ्रेम में है और ये वेलोसिटी एस फ्रेम में है, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी है जिससे एस प्राइम फ्रेम मूव कर रहा है। वाई प्राइम फ्रेम यानी जो वेलोसिटी का वाई कोऑर्डिनेट है उसमें कोई चेंज नहीं है। जैसी वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी पार्टिकल की एस फ्रेम में है, वैसी ही एस फ्रेम में है, और जेड कोऑर्डिनेट ऑफ वेलोसिटी भी अनचेंज्ड रहता है। यानी एस प्राइम फ्रेम में जिस तरह की वेलोसिटी है उसी तरह की वेलोसिटी पार्टिकल की एस फ्रेम में भी दिखाई देती है। यानी इस इक्वेशन, जो इक्वेशन नंबर 3 हमने यहाँ कहा है, इस इक्वेशन का रिजल्ट ये है कि एस फ्रेम की वेलोसिटी अलग रहती है और एस प्राइम फ्रेम की वेलोसिटी अलग रहती है। यानी दो इनर्शियल फ्रेम्स जो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में v वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, कोई एक फ्रेम, उनमें वेलोसिटी का एक्स कोऑर्डिनेट डिफरेंट रहता है। ये पहला रिजल्ट हमने एक्वायर किया फ्रॉम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन बाय द यूज ऑफ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। एक्सीलरेशन के ऊपर बात करें, वेलोसिटी हमने निकाल ली है, एक्सीलरेशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। आप क्या करें, वेलोसिटी का टाइम डेरिवेटिव फाइंड कर लें, वेलोसिटी का टाइम डेरिवेटिव फाइंड कर लें, और टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी ही आपको क्या दे देगा? टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी आपको दे देगा क्या? एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन के लिए हम इन जो रिजल्ट्स हमने इक्वेशन नंबर 3 से एक्वायर किए हैं, इनको हम यूज कर सकते हैं। तो यूज करते हैं इन रिजल्ट्स को। जो vx प्राइम यहाँ से मुझे वेलोसिटी मिली है, अगर इसका मैं समय के साथ टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दूं, तो यही इक्वेशन मुझे क्या दे देगी? एक्सीलरेशन दे देगी। एक्सीलरेशन का रिलेशन दे देगी बिटवीन एस फ्रेम एंड एस प्राइम फ्रेम। ओके, दो फ्रेम हैं जिनको हमने इनर्शियल मान के चले हैं। कंडीशन ये थी कि एस प्राइम फ्रेम एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में v वेलोसिटी, कांस्टेंट v वेलोसिटी से मूव कर रहा था। ओके, सो जो एक्सीलरेशन का कोऑर्डिनेट होगा ax प्राइम should be equals to d by dt, that is the time rate change of velocity in x prime frame is equals to d by dt of vx minus v, because vx prime is equals to vx minus v. So put here the value of vx prime, which is equals to vx minus v, is equals to dvx over dt minus dv by dt, and is equals to dvx by dt. Why dvx by dt? Because dv by dt is equals to 0. And why 0? Because the time rate change of a constant quantity, because earlier we considered that the velocity of s prime frame with respect to s is
V and V is constant, so time rate change of any constant quantity will give you 0. So we are left with dVx by dt, and the time rate change of Vx coordinate, that is the x coordinate of velocity in S frame, gives you the acceleration in that frame. Acceleration coordinate or x coordinate of acceleration in that particular frame. Okay, so the result is that the x coordinate of acceleration in S prime frame is equals to the x coordinate of acceleration in S frame. That means there is no change, or acceleration remains unchanged in S frame as well as in S prime frame. Okay, look at y coordinate of acceleration. So the y coordinate of acceleration in S prime frame is equals to d by dt, that is the time rate change of velocity, that is the y coordinate of velocity in y S prime frame is equals to time rate change of Vy, because Vy prime is equals to Vy, and time rate change of y coordinate of velocity gives you the y coordinate of acceleration in S frame. That is, this equation suggests us the y coordinate of acceleration in S prime frame is equals to the y coordinate of acceleration in S frame. That is, again, there is no change in the acceleration in S frame as well as in y frame, S prime frame. And look at the third result, that is the z coordinate of acceleration in S prime frame is equals to d by dt of z coordinate of velocity in S prime frame is equals to time rate change of Vz, because Vz prime, look at here, Vz prime is equals to Vz. So d by dt, that is the time rate change of Vz, gives you Az. This equation suggests us that the z coordinate of acceleration in S prime frame is equals to the z coordinate of acceleration in S frame. And look at these three results, first, second and third. और जब इन तीनों रिजल्ट्स को आप देखते हैं तो तीनों रिजल्ट्स आपको ये दिखाएंगे कि एक्सीलरेशन जैसा S फ्रेम में है वैसा ही एक्सीलरेशन S फ्रेम में भी है पार्टिकल का, यानी एक्सीलरेशन में कोई चेंज नहीं आता, या इसी को मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो द एक्सीलरेशन ऑफ अ पार्टिकल रिमेन्स इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन वेलोसिटी के बारे में मैं ये बात नहीं कह सकता. देयर इज अ चेंज इन द वेलोसिटी. Look at here, velocity in S prime frame, the x coordinate of velocity in S prime frame, and look at here, the velocity, the x coordinate of velocity in S frame minus v, that is the velocity of S frame, which is moving with constant velocity v with respect to S frame. Okay, so from above discussion we can write that the x coordinate of acceleration in S prime frame is equals to the x coordinate of acceleration in S frame, y coordinate of acceleration in S prime frame is equals to the y coordinate of acceleration in S frame, and z coordinate of acceleration in S prime frame is equals to the z coordinate of acceleration in S frame. That is, there is no change in the acceleration as under the Galilean transformation. एक्सीलरेशन में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन वेलोसिटी अलग अलग होगी. जो कम से कम वेलोसिटी का एक्स कोऑर्डिनेट है उसमें तो निश्चित रूप से चेंज होगा अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, दिस रिजल्ट शोज दैट एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स आर इक्वल. द अबव रिजल्ट इज वैलिड फॉर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन. ऐसा केवल किसके अंडर होगा? गैलीलियन. हमेशा ऐसा नहीं होगा. ये शर्त है, ये नियम केवल कब तक वैलिड है? जब तक हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की बातें कर रहे हैं. गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में हैं ये बातें तब तक वैलिड हैं. सो द अबव रिजल्ट, चाहे वो वेलोसिटी का रिजल्ट हो, चाहे वो कोऑर्डिनेट के ट्रांसफॉर्मेशन का रिजल्ट हो, चाहे वो एक्सीलरेशन का रिजल्ट हो, ये रिजल्ट कब तक वैलिड रहेंगे? जब तक कि हम
गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की बातें कर रहे हैं। ओके, सो द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस आर वैलिड इन लो वेलोसिटी वर्ल्ड। केवल लो वेलोसिटी वर्ल्ड में ही वैलिड रहती हैं। जब भी हम कंपेरेटिव टू द स्पीड ऑफ लाइट, रिलेटिविस्टिक लिमिट्स जिसको हम कहते हैं, वहां हम जाते हैं तो ये इक्वेशन वैलिड नहीं रह पाती। एक्सेलरेशन वैसा नहीं रह पाता, वेलोसिटी वैसी नहीं रह पाती। ये केवल कब वैलिड है? जब तक हम लो वेलोसिटी वर्ल्ड में वर्क कर रहे हैं। जब हम रिलेटिविस्टिक लिमिट्स में जाते हैं तब ना तो ऐसा चेंज हमें वेलोसिटी में मिलता, ना ही एक्सेलरेशन के बारे में ये बातें सच रह पाती। कब? जब हम रिलेटिविस्टिक लिमिट्स में बात करें। मैंने अभी कुछ एग्जांपल्स आपको दिए थे, साइकिल की स्पीड, मोटरसाइकिल की स्पीड, बस की स्पीड, ट्रेन की स्पीड, हवाई जहाज की स्पीड, ये सब लो वेलोसिटीज हैं एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट। अगर हम रिलेटिविस्टिक लिमिट्स में जाएं तो तब इस तरह की इक्वेशंस वैलिड नहीं रह पाती हैं। आगे आप देखेंगे भी। ओके, सो अब बात कर लेते हैं फॉर ऑल और मोस्ट ऑफ ऑल। आप फॉर ऑल ना बोल के आप इसे बोलें फॉर मोस्ट ऑफ, आप ऐसा बोलें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि सभी तरह के मोशन को गवर्न नहीं कर सकता न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फॉर मोस्ट ऑल ऑफ काइंड ऑफ मोशंस आर गवर्न्ड बाय द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। बहुत सारे, अप्रोक्सीमेटली, मैं सभी तरह के नहीं कह सकता, लेकिन लगभग सभी तरह के जो मोशन हैं वो गवर्न्ड होते हैं बाय द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज F इक्वल्स टू ma, that is the vector F is equals to m into the acceleration vector। ओके, इस तरह के ये रिलेशन होता है। और जितने भी लगभग सभी तरह के जो मोशन है, लगभग मैं बोल रहा हूँ, लगभग सभी तरह के जो मोशन है वो इसी सेकंड लॉ ऑफ मोशन से ही गवर्न होते हैं। और सेकंड लॉ ऑफ मोशन का ये जो फॉर्म है, ये हम कब है? जब हम इसको एस फ्रेम से देख रहे हैं। लेकिन अगर एस प्राइम फ्रेम से हम इसी लॉ को देखें तो कुछ इस तरह का होगा। क्योंकि फोर्स की अगर मैं बात करूं, फोर्स तो वो डिपेंड करता है मास ऑफ द पार्टिकल एंड एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल। मास ऑफ द पार्टिकल एंड एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल। मास इनवेरिएंट पहले से ही है, क्योंकि यहाँ किसी ऐसे सब्जेक्ट में हम बात नहीं कर रहे हैं जहाँ एक वेरिएबल मास का कंसेप्ट आता हो। बहुत सारे मैकेनिक्स में जब हम स्टडी करते हैं, रॉकेट का कंसेप्ट अगर आप स्टडी का आपने कभी मैकेनिक्स में किया हो तो वो एक वेरिएबल मास का कंसेप्ट है, रॉकेट का कंसेप्ट। तो ऐसे किसी कंसेप्ट के ऊपर, ऐसे किसी मोशन के ऊपर हम बात नहीं कर रहे हैं। हम लो वेलोसिटी वर्ल्ड के जो मोशंस हैं उन्हीं के ऊपर बात कर रहे हैं। और उनके ऊपर बात करते हुए जो हम कहना चाहते हैं वो ये है कि मास ऑफ द पार्टिकल विल बी कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन एज सजेस्टेड बाय गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन इज आल्सो कांस्टेंट। तो यू कैन से इट एज दैट द फोर्स which is the product of mass of the particle and acceleration of the particle will also be a constant. So as we weaved from S prime frame, the force that is noted as F prime is equals to F vector F, M prime is equals to m because there is no change in the mass, and acceleration, the acceleration of the particle in S prime frame will also be equal to the acceleration of the particle in S frame. So the force acted upon a particle of mass m prime in S prime frame will be equals to F prime vector F prime is equals to m prime, and vector acceleration vector a prime should be equals to F equals to ma, that is vector F is equals to m into vector a. Okay, so Newton's second law of motion remains invariant in all inertial frame under Galilean transformation. तो जो न्यूटन का सेकंड लॉ है, जो लगभग सभी तरह के मोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो भी इन्वेरिएंट रहता है अंडर
Galilean transformation in all inertial frames, not in non-inertial but in all inertial frames. Okay. Now कुछ फिनोमिना के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, अगर कोई मास m का पार्टिकल है, जितने भी रिजल्ट्स या जितने भी एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी आप एस फ्रेम में करते हैं, ये जो अभी हम रिजल्ट स्टडी करते हैं, दैट इज फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं है, मास पे कोई इफेक्ट नहीं है, एक्सीलरेशन पे कोई इफेक्ट नहीं है, इफेक्ट केवल वेलोसिटी पे है, इफेक्ट केवल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पे है। यानी आप बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ नोटेड भी किए, पर फिर भी मैं आपको और भी बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे फैमिलियर करा सकता हूँ जहाँ मोशंस हैं फ्रेम एस का, फ्रेम एस प्राइम का विद रेस्पेक्ट टू एस फ्रेम, लेकिन अगर कुछ फिनोमिना, कुछ रिजल्ट्स, कुछ घटनाएं मैं एस फ्रेम में करता हूं या करना चाहता हूं, तो वैसी ही घटनाएं एस प्राइम फ्रेम में भी होंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कोई चौक का टुकड़ा है और मैं उसे एस फ्रेम में, इनर्शियल फ्रेम में, इनर्शियल एस फ्रेम में छोड़ता हूं और ग्रेविटी के अंडर मोशन करता है और वो किसी पॉइंट को हिट करता है, तो उसी चौक के टुकड़े को अगर मैं एस प्राइम फ्रेम में भी ऊपर से छोड़ूंगा तो वो उसी पॉइंट को टिक करेगा, बनस्पत की एस प्राइम फ्रेम एस फ्रेम की अपेक्षा विद रेस्पेक्ट टू एस फ्रेम वी वेलोसिटी से मूव कर भी रहा हो, तब भी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। अगर आप चाय पीते हैं और बिना गिराए, बिना हिलाए डुलाए आप चाय पी सकते हैं किसी फ्रेम एस में, तो वैसी ही चाय उसी कंडीशन के साथ आप एस प्राइम फ्रेम में भी पी सकते हैं बिना छलकाए। बिना छलकाए चाय का प्याला अगर आप एस फ्रेम में भी पीते हैं तो वैसा ही स्किल्स, वैसा ही एक्सपीरियंस आप एस प्राइम फ्रेम में भी करेंगे। अगर आप ग्राउंड पे बैडमिंटन खेलते हैं और आपकी बैडमिंटन की स्किल बहुत अच्छी है, आपकी बैडमिंटन की स्किल बहुत अच्छी है, तो उन्हीं सभी स्किल्स का, उन्हीं सभी मूव्स का आप बिल्कुल एक्सपीरियंस कर सकते हैं किसी ऐसे यार्ड पे जो कांस्टेंट वेलोसिटी से समुद्र में ट्रेवल कर रहा हो, किसी सी में ट्रेवल कर रहा हो। आपकी स्किल्स, आपके मूव्स बिल्कुल वैसे ही रहेंगे, बनस्पत कि वो यार्ड, वो शिप वी वेलोसिटी, कांस्टेंट वी वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, वेलोसिटी में चेंज ना हो। वेलोसिटी में चेंज होगा, एक्सीलरेशन पैदा होगा, एक्सीलरेशन होगा तो वहां फोर्स अप्लाई होगा, तो वहां से कहानियां बदल जाएंगी। लेकिन जब तक कि कोई एक फ्रेम किसी दूसरे फ्रेम की अपेक्षा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वहां जितने रिजल्ट्स हैं, जितने एक्सपेरिमेंट्स हैं, जितने अनुभव हैं, वो सब वैसे ही आपको महसूस होंगे जैसे आप एस फ्रेम में महसूस करते हैं, वैसे ही आपको एस प्राइम फ्रेम में भी महसूस होंगे। तो इसलिए हम इनको इनर्शियल फ्रेम्स कह रहे हैं। दीज आर इनर्शियल फ्रेम्स। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपने देखा वैलिड हुआ है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपने देखा वैलिड है अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। वेलोसिटी में चेंज है, एक्सेलरेशन में चेंज नहीं है, फोर्स में चेंज नहीं है, मास में चेंज नहीं है। इस तरह के अनुभव आप करते हैं। तो जितना एक्सपीरियंस, जितना अनुभव आपको, जितना जो रिजल्ट्स आपको एस फ्रेम में आएंगे, वैसे ही ठीक रिजल्ट्स आपको एस प्राइम फ्रेम में भी देखने को मिलेंगे, अगर एस प्राइम फ्रेम एस फ्रेम की अपेक्षा एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो ये रिजल्ट मुझे लेके जाता है टू द प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी।
to the principle of relativity. And the principle of relativity is that the laws of nature or laws of physics remains invariant in all inertial frames. सभी inertial, सभी जड़त्वीय फ्रेमों में, फ्रेम को बोलते हैं निर्देश तंत्र, हिंदी में निर्देश तंत्र उसको बोलते हैं। तो सभी निर्देश तंत्रों में प्रकृति के नियम एक जैसे रहते हैं। द लॉज ऑफ नेचर और लॉज ऑफ फिजिक्स, बिकॉज लॉज ऑफ फिजिक्स ही लॉज ऑफ नेचर है। लॉज ऑफ नेचर रिमेन्स इनवेरिएंट इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स। जितने भी जड़त्वीय फ्रेम हैं, जितने भी जड़त्वीय निर्देश तंत्र हैं, उन सभी निर्देश तंत्रों में प्रकृति के नियम, लॉज ऑफ नेचर एक जैसे, एक समान, इनवेरिएंट रहते हैं। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। ओके, अब ये तो बहुत सुखद अनुभव अभी तक हमने किए। हमने कहा वेलोसिटी में चेंज होता है, कोऑर्डिनेट में चेंज होता है, एक्सीलरेशन में चेंज नहीं होता है, फोर्स में चेंज नहीं होता है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। लेकिन बाधाएं शुरू होती हैं। अब बाधाएं क्या हैं? दैट इज नॉन इनवेरिएंस ऑफ मैक्सवेल लॉज अंडर जीटी। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के तहत, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर मैक्सवेल्स जो इक्वेशंस हैं, जो रिजल्ट है हमें देती है ईएमटी की 4 मैक्सवेल इक्वेशन। दीज आर 4 मैक्सवेल इक्वेशन। डेल डॉट वेक्टर E is equals to rho over epsilon naught del vector B is equals to 0. Del cross E, that is vector del cross vector E is equals to minus del B vector over del T. And fourth one is del cross B, that is vector del cross vector B is equals to mu naught J vector plus mu naught epsilon naught del over del T of E vector, or dou over dou T over of vector E, the electric field vector. ये जो 4 मैक्सवेल इक्वेशन हैं, जिनको हम मैक्सवेल लॉज या ईएमटी के लॉज भी हम इन्हें कह सकते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है वो इन्हीं 4 रिजल्ट्स के साथ हमें कंक्लूड करती है। तो जो मैक्सवेल के नियम हैं, ये इनवेरिएंट नहीं रह पाते हैं अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्यों नहीं रह पाते हैं? देखिए, when we are in the field of electricity and magnetism, the motion of charged particles are governed by Maxwell equations, and in these type of motions are not invariant under Galilean transformation. Galilean transformation के तहत, Galilean transformation के अंडर ये जितने भी मोशंस यहाँ आप डिस्कस कर लें, ये इनवेरिएंट नहीं रह पाते हैं। इनवेरिएंट नहीं रह पाते हैं। तो अब क्या होगा? फोर्स की बात कर लें, कूलम फोर्स इनवेरिएंट नहीं रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड, किसी वायर से करंट फ्लो हो रहा है तो इतना मैग्नेटिक फील्ड है, नहीं रहेगा इनवेरिएंट। ये फैराडेज लॉ इनवेरिएंट नहीं रहेगा, या फिर लॉरेंज फोर्स लॉ इनवेरिएंट नहीं रहेगा। यानी जो मैक्सवेल इक्वेशंस हैं या मैक्सवेल लॉज आप उन्हें कहिए, वो इनवेरिएंट नहीं रहते अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। मैकेनिक्स तक केवल आप उसको कह सकते हैं कि जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अभी तक जितना हमने नॉलेज एक्वायर किया है, उसके तहत, उसके अनुसार केवल मैकेनिक्स ही वो रेंज है जहां तक, या मैकेनिक्स में जो मोशंस हैं वो ही गवर्न्ड होते हैं अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। जो अलग तरह के मोशंस हैं, चार्ज पार्टिकल के मोशंस हैं और तरह के जितने मोशंस हैं, वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर इनवेरिएंस नहीं रहती। तो ये बहुत बड़ी समस्या होगी। अब क्या करें? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे वैलिड करें?
क्या करें। अब ये जो 4 मैक्सवेल इक्वेशंस हैं, ये डायरेक्टली हमें जो रिजल्ट्स देते हैं उनसे हम एक वेव इक्वेशन का फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं, और वो फॉर्म कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए। आपने अपने ईडी वाले सिलेबस में यहाँ ये स्टडी किया है। अगर आप कर्ल फाइंड करें थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन का, तो ये जो इक्वेशंस आती हैं आपके पास, इनको आप वेव इक्वेशंस कहते हैं। और इन इक्वेशंस का फायदा ये है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के लिए सेपरेट इक्वेशन मिल जाती हैं। लेकिन नुकसान ये हुआ कि ये जो इक्वेशंस हैं, यहाँ डेल का स्क्वायर हो गया और यहाँ डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो गया। ये इनके साथ नुकसान हुआ, और फायदा ये हुआ कि जो मिक्स हो रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इन थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल, वो अब अलग अलग हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अलग इक्वेशन, मैग्नेटिक फील्ड के लिए अलग इक्वेशन। इन्हीं इक्वेशंस को हम कहते हैं वेव्स इक्वेशन या वेव्स द इक्वेशन, द वेव इक्वेशन। ओके, इन इक्वेशंस के बाद जो हमें मिला वो ये था कि ये जो फैक्टर यहाँ था हमारे पास 1/μ0ε0, इसको हमने कहा अगर इस तरह हम इसे लिखे 1/√μ0ε0 दैट इज इक्वल टू c, the velocity of light will be equals to 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड हमें लाइट की मिली। अब यहां से बहुत इंटरेस्टिंग कहानियां शुरू हुई। कहानियां क्या हुई कि जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन था वो हमें कह रहा था कि वेलोसिटी एक इनर्शियल फ्रेम में अलग होगी, दूसरे इनर्शियल फ्रेम में अलग होगी, किसी तीसरे इनर्शियल फ्रेम में अलग होगी और चौथे में अलग होगी, या इससे आगे जो होंगे फ्रेम्स में। यानी वेलोसिटी में चेंज आएगा अकॉर्डिंग टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये जो वेलोसिटी निकल के आई, ये क्या वेलोसिटी थी? विच इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और इन फ्री स्पेस। Okay, because Maxwell equations are not invariant under Galilean transformation, that is, if Maxwell equations are valid in S frame, cannot be similar or valid in other frame S prime, which moves with a constant velocity with respect to S. But velocity of light is same for all the inertial frames, which is not in agreement with Galilean transformation, which says that the velocity of all particles in all inertial frames are not same. कहानी यहाँ से बिगड़नी शुरू हो गई। कहानी में यहाँ से बिगड़ना कहानी का शुरू हो गया। कहानी बिगड़ी क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और इन फ्री स्पेस, वेलोसिटी ऑफ लाइट फ्री स्पेस या वैक्यूम में एक जैसी है, और जो मैक्सवेल लॉज, मैक्सवेल इक्वेशंस हैं वो वैलिड नहीं है, इनवेरिएंट नहीं है अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। चूंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट को आपने कंसीडर कर लिया कि सभी फ्रेम्स में, सभी इनर्शियल फ्रेम्स में वेलोसिटी ऑफ लाइट दैट इज c इक्वल्स टू 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड एक जैसी है। लेकिन वेलोसिटी में तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहता है कि चेंज होता है, एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जाइए इनर्शियल फ्रेम में, आपको वेलोसिटी में चेंज मिलेगा। लेकिन वेलोसिटी ऑफ लाइट में तो चेंज नहीं हो रहा, वेलोसिटी ऑफ लाइट में तो चेंज नहीं हो रहा। तो यहां एक कॉन्ट्रेडिक्टरी सिचुएशन पैदा हो गई। अब कॉन्ट्रेडिक्टरी सिचुएशन क्या थी? इफ द प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी इज ट्रू, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी क्या कहता है? लॉज ऑफ नेचर रिमेन्स इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। लॉज ऑफ नेचर रिमेन्स इनवेरिएंट
under Galilean transformation. If principle of relativity is true, then Maxwell equations should be invariant in Galilean transformation. तो मैक्सवेल इक्वेशंस को भी इनवेरिएंट रहना चाहिए था अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन वो नहीं रहती। फिर वेलोसिटी ऑफ लाइट इज सेम इन ऑल फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज अगेंस्ट जीटी, जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अगेंस्ट है। और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसका मतलब क्या ये है कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन सच नहीं है या सत्य नहीं है? अगर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन सच नहीं है तो फिर खतरा मंडराना शुरू हो जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के ऊपर, क्योंकि जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन आई है, ये वाली जो ट्रांसफॉर्मेशन आई है, ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से ही आई है। तो अब खतरा शुरू हो गया किसके ऊपर? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। और अगर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन सच नहीं है तो क्या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी सही नहीं है? और अगर ये सही है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन सही है, तो इसके अनुसार वेलोसिटी में चेंज होना चाहिए इन वन इनर्शियल फ्रेम टू अदर इनर्शियल फ्रेम, लेकिन वेलोसिटी ऑफ लाइट तो सेम है सभी इनर्शियल फ्रेम्स के लिए। और वेलोसिटी ऑफ लाइट सेम है तभी और केवल तभी मैक्सवेल लॉज इनवेरिएंट रहेंगे। तो कहानी कुछ इस तरह उलझ गई है कि अगर मैक्सवेल लॉज को इनवेरिएंट रखना है अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट को सभी इनर्शियल फ्रेम के लिए एक होना चाहिए, और वेलोसिटी ऑफ लाइट सभी इनर्शियल फ्रेम के लिए एक नहीं हो सकती अकॉर्डिंग टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। सॉरी, और अगर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन सच नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क आ जाता है ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो इस सारी सिचुएशन के सॉल्यूशन के लिए एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट सबको मानने पड़ते हैं, वो वैलिड होते हैं, उनके पीछे रीजन होता है, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस होता है। माइकलसन मोरले ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जो इन्हीं के नाम पे आपने माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, कहीं ऑप्टिक्स में जब आपने कभी स्टडी किया हो ऑप्टिक्स की ब्रांच, तो वहां माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट आपको जरूर देखने को मिला होगा। टारगेट ये था माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट के, जो कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन यहाँ बनी थी, टारगेट ये था टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ अर्थ इन द फ्रेम ऑफ ईथर। व्हाट इज ईथर? ईथर एक ऐसा कंसेप्ट था जो एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेस्ट माना गया कि ये वो फ्रेम है जिसमें अर्थ रन करती है, और इसी फ्रेम को एब्सोल्यूट रेस्ट का फ्रेम माना गया, जिसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट c है। यानी ईथर वो फ्रेम है, ये वो फ्रेम है जिसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट c है और वो कांस्टेंट रहती है, और उस ईथर के फ्रेम में हमें वेलोसिटी ऑफ अर्थ कैलकुलेट करनी है। और वो काम शुरू किया किसने? माइकलसन मोरले ने ये काम शुरू किया इनटू द लास्ट ऑफ 19th सेंचुरी। बहुत समय इस एक्सपेरिमेंट को दिया गया और बहुत इंटरेस्टिंग ये एक्सपेरिमेंट है। इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। बहुत ज़्यादा हम इस पर चर्चा नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास समय कम है। हमारे पास 3 या 4 लेक्चर अभी बचे हैं, तो कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। तो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स हैं उसके अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।